تالیوں کے ساتھ آج کے اس دن کی بڑی غلام کو اور خدا کے خادم کو ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کے خادم اور خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے. ہالیلویا. مسیح میں تمام بیٹیوں اور بہنوں کو بھائیوں کو سلام. عزیزوں، آج کی شام کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج پھر ہمیں زندہ رکھا ہے اور آج کی شام کے لیے اپنی روحانی خوراک ایٹ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. سو اس خدا کے لیے جس نے آج کی شام ہمیں بخشی ہے، زوردار تعریف جائیے گا. اس خدا کے لیے جو آج تک آپ کو سنبھالے ہوئے زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو آج کی جو تلاوت ہے کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10 باب 11 سے غالباً 15 آیات 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. اور بہن ہے بیٹھی ہوئی، وہ آپ کے سامنے اس کا مطالعہ کرے گی. سنیے گا کہ آج کی تلاوت یقیناً ہر زندگی کے لیے سبق آموز ہے. آج کی تلاوت ہر زندگی کے لیے سبق آموز ہے اور آپ اس میں سے زندگی تلاش کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے آرام دہ ثابت یہ الفاظ ہوں گے. سنیے. خدا کی زندگی بخش کلام سے ہمارے لیے آج کا پیغام یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 11ویں سے 15ویں آیات تک. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیوں کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے. وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. اچھا چرواہا میں ہوں. جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. پاک کلام کے پڑھنے اور سننے جان پر خدا کی خاص برکت. خدا کا شکر. تھینک یو بیٹا. خدا آپ کے ساتھ. عزیزوں، 20 منٹ کے تک آج کے کلام کی جو شعر ہے میں آپ کے ساتھ کروں گا. لوگوں کا واپس جانا اور بیٹھنا اس کو مد نظر رکھا جائے گا. آپ جانتے ہیں کلام مقدس کے علاوہ ہمارا کوئی در بھی تو نہیں ہے نا. کلام ہے تو آرام ہے، کلام ہے تو زندگی ہے. اگر کلام شعر ہوگا تو یہاں پاک فرشتوں کی پارے لگ جائیں گی. کلام ہی کے وجود کے وسیلہ سے ہم اپنا جو معجزہ تلاش کرتے ہیں وہ کلام کی وجہ سے ہم تلاش کر سکتے ہیں. ویسے ہمیں معجزہ نہیں مل سکتا. اسی لیے سب لوگ کلام کے آغاز کو لیتے ہیں. یسوع کو ہر ایک بیٹا اور بیٹی جانتی ہے کہ یسوع کون ہے. یسوع جس نے کہا بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے. یسوع کون ہے؟ یسوع اچھا چرواہا ہے. جس نے کہا کہ اچھا چرواہا ہے، یسوع اچھا چرواہا ہے. یسوع کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. بالکل. جس نے کہا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے. یسوع کون ہے؟ نجات دینے والا. اور بالکل یسوع نجات دینے والا ہے. اور یسوع یہ سب ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کے لیے وہ قربت چاہتا ہے کہ یسوع انسان کے نزدیک سے نزدیک تر ہو اور انسان یسوع کے زیادہ سے زیادہ نزدیک تر ہو. یسوع کے نام مختلف طریقوں سے لیے جاتے ہیں. کوئی اسے رہنما کہتا ہے، وہ رات کھانے والا ہے. کوئی اسے چرواہا کہتا ہے تو وہ کیا خوراک دینے والا ہے. کوئی اس کو نجات دہندہ کہتا ہے تو بالکل یسوع کا مطلب ہی کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے. اور کوئی اس کو باپ کہتا ہے، کوئی اس کو بیٹا کہتا ہے، کوئی اس کو کلام حق کہتا ہے، کوئی اس کو ابن مریم کہتا ہے، اور کوئی اس کو زندگی کی راہ کہتا ہے، کوئی اس کو زندگی کی روٹی کہتا ہے، کوئی اس کو زندگی کا پانی کہتا ہے. کیونکہ وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہاللیلویا. وہ کیا ہے؟
है और हमेशा रहेगा। कितने नामों से पुकारा जाने वाला इब्ने मरियम यीशु खुदा का बेटा रूहानी के तौर के पर एक वो खुदा का मंबा और राह की निजात, इंसान के लिए आरामदेह और बीमारियों को दूर करने वाला मेडिसिन और हमारी जिंदगी के लिए शिफा का जरिया। ये कितने नाम किसके हैं? किसके नाम हैं? ये सब नाम यीशु के हैं। जो शख्स जिस नजरिए से यीशु को पुकारता है उसी नजरिए से उसके लिए बरकत प्रोवाइड की जाती है। अगर जिस नजरिए से कोई यीशु को देखता है उसी नजरिए से उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी। मैं इस बात को दावे से कहता हूं क्योंकि यीशु आपकी जिंदगी के लिए वो लफ्ज चुनकर पहले ही रख चुका है कि मैं इतने लफ्जों से पुकारा जाता हूं क्योंकि वो तारीफ के लायक है। वो क्या है? तारीफ के लायक है। उनमें से एक लफ्ज यहां अभी अभी जो बहन ने पढ़ा है कि उसने क्या कहा है? अच्छा चरवाहा। किसने कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा यीशु अपने आप को क्यों कहता है? क्योंकि इससे पहले भी तो वो कहता है कि मैं निजात देने वाला हूं। लेकिन ऐसा वक्त आया है कि यीशु यहां पर आकर कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। ये कैसा वक्त आ गया? चरवाहा होता कौन है? भेड़े चरवाने वाला। और पंजाबी सानू की क्या बात है? छेड़ू। छेड़ू भेड़ा चराने वाला छेड़ू, बकरियां चराने वाला छेड़ू, डंगर चराने वाला छेड़ू। किन्नी गिनके 7 अल्फाज विच है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ओपन लफ्ज करके कह रहे हैं कि यीशु की ये भेड़ां दा छेड़ू है। यीशु छेड़ू है। और क्यों? इसी को जब हम अच्छी इनके जुबान की लैंग्वेज के मुताबिक तब्दीली के मुताबिक कहते वो अच्छा चरवाहा है, छेड़ू को चरवाहा कहते हैं। और चरवाहा होता कौन है? यानी कि जो अपनी भेड़े चराए और चराने वाला चरवाहा, चराने वाला चरवाहा। और यहां वो कहता है कि मैं अपनी भेड़े चराने वाला हूं, मैं चरवाहा हूं। वो चरवाहा अपने आप को कैसे साबित करता है? यीशु कहता है कि मैं चरवाहा हूं। तो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए किन किन चीजों की चरान पेश करता है? किन किन चीजों को मद्देनजर रखता है कि मेरी भेड़ों को इन बातों की जरूरत है, मैं इनको दूंगा। मेरी भेड़ों को अभी पानी की जरूरत है, मैं इनको पानी पिलाऊंगा। ये किसका काम है? अच्छे चरवाहे का काम। किसका काम है? अच्छे चरवाहे का काम। अच्छा चरवाहा क्या आपकी जिंदगी के अंदर है? किसकी जिंदगी के अंदर अच्छा चरवाहा है? वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। बाकी करने गुजारा हो जाएगा। गुजारा कर रहे हैं ना? जो करार करता है बरकत उसके लिए है। मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि अगर हम सुस्ती और कैली की क्लास लेंगे, सुस्ती और कैली की इबादत करेंगे, सुस्ती और कैली का कलाम सुनेंगे तो गुजारे मुआफ़क़त ये जो हम चाहते हैं कि चरवाहा हमारे लिए करे वो नहीं करेगा। जो हम चाहते हैं कि चरवाहा हमें पानी पिलाए, हम प्यासे हैं। यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी का पानी हूं, जो मेरे पास आएगा वो हमेशा तक कभी भी प्यासा ना होगा। ये किसका काम है? ये पानी पिलाना। ये इसी चरवाहे का काम है। ये चरवाहा आवाज लगा रहा है कि जिंदगी का पानी लो, लेकिन सुस्ती और कैली के अंदर पड़े हुए लोग आज भी अपनी आंखें मूंदे हुए ऐसे ढूंढ रहे हैं और पानी उनकी आंखों से गुजर रहा है। क्या हो रहा है? गुजर रहा है, कानों के जरिए गुजर रहा है, आगे को जा रहा है और वो कुछ उस पानी को फॉलो नहीं कर रहे। आखिरी लास्ट लफ्ज एक और है यीशु के लिए जो बोला गया, उसने कहा कि जिंदगी का कलाम मैं हूं। यहाँ आकर जिंदगी का कलाम भी तब यीशु बना और इसी चरवाहे का नाम ही जिंदगी का कलाम है। आपको आवाज देता है, मैं चरवाहा, मैं जिंदगी का कलाम, आओ मुझसे मोहब्बत करते हो तुम। वो ये भी आपसे ले रहा है कि मुझसे मोहब्बत करते हो तुम। वो कहता जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरा कलाम सुनता है, वो मेरे रिश्तेदारों में है। किसने कहा ये?
यीशु ने कहा था कि नहीं कहा था? तेरे मां बाप तेरे भैन भाई कौन कौन आए ने तेन बुलान आए ने। तूने की क्या? मेरे भैन भाई कौन ने? जो मेरे कलाम की बातें सुनते कि कलाम सुनने के दौरान सो जाते हैं, वो मेरे बेटे बहन भाई हैं। जो कलाम को सुनते हैं, हम उसके पास बैठकर भी बेटे बेटियां नहीं बन रहे, क्योंकि हमारे पास सुस्ती कैली, क्योंकि लिखा मिसाल की किताबें कि सुस्त बंदा अपना नवाला मुंह तक तो ले जाता है, लेकिन उसका मुंह तक नवाला नहीं जाता और उसके हाथ से गिर जाता है, क्योंकि सुस्ती और कैली उसको कंगाल बना देगी। इसीलिए हम उसके बेटे और बेटियां साबित नहीं हो रहे, क्योंकि वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं जिंदगी का कलाम हूं और मुझसे हमेशा की जिंदगी का पानी लो, मैं पिलाने के लिए तैयार हूं। अब हम जिंदगी के कलाम को हम ड्रिंक करना चाहते हैं, पानी की जिंदगी। यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं और जिंदगी की रोटी को हमें खिलाना चाहता है। उसने कहा कि लो मेरा गोश्त खाओ और मेरा खून पियो, इससे बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ये किसकी आवाज थी? अकेली बोली बोली मेरी बेगिन की बेटी बोलती है, बाकी या तो वो सुनते नहीं या किसी को आता नहीं है। ये किसकी आवाज है? अच्छे चरवाहे की आवाज है। अच्छा चरवाहा अपनी जान देता है और कहता है मुझे अपनी भेड़ों से मोहब्बत है और भेड़ों के लिए मैं अपनी जान दूंगा, क्योंकि ये भेड़ें मेरी है और मेरी भेड़ें दर बदर नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं उनके लिए दरवाजा हूं और वो मेरे दरवाजा में से अंदर बाहर आया जाया करेगी, क्योंकि मैं उनके लिए मोहब्बत को उजागर करता हूं। मोहब्बत यीशु कब तक नहीं करता? यीशु की मोहब्बत मुंह बोलता सबूत है। उसने कहा कि देखो इससे बढ़कर कौन मोहब्बत कर सकता है कि अपनी जान तक दे दे। मोहब्बत को सवाल नहीं, मोहब्बत सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है और मोहब्बत दूसरों का भला चाहती है, मोहब्बत अपना नुकसान करती है और मोहब्बत दूसरों के लिए भलाई पैदा करती है, लेकिन अपना वो भलाई के लिए काम नहीं करती। वो कभी कभी दूसरों के लिए कुर्बान होना, निसार हो जाना और मिट जाना, यानी कि दूसरों के लिए अपना वक़्फ़ कर देना। इस चरवाहे में मोहब्बत, इस चरवाहे में क्या थी? मोहब्बत थी। इस चरवाहे में अगर मोहब्बत ना होती तो वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान ना देता। हालेलुया। चरवाहे के लिए तालीम जाइएगा। अच्छे चरवाहे के लिए, इस अच्छे चरवाहे ने अपनी क्या दी? अपनी जान दे दी। वो जान कौन सी भेड़े है? चरवाहा कौन है? मैं फिर पूछता, चरवाहा कौन है? भेड़े कौन है? भेड़े कौन है? हम लोग भेड़े हैं। तो क्या इन भेड़ों के लिए, हम लोगों के लिए अच्छे चरवाहे ने, यीशु ने अपनी जान दी है कि नहीं दी? अब हम जो भेड़े हैं हमारे लिए जान दी है चरवाहे ने कि नहीं दी? और पीछे आने वाली भेड़ों और आगे आने वाली भेड़ों, जितनी भी भेड़े हैं उन सब के लिए यीशु ने अपनी जान दे दी और कहा कि तुम्हें एक चीज की जरूरत है, वो है जिंदगी, और वो जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी और जिंदगी का जरिया मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि मैं भेड़ों तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा की जिंदगी मुझसे क्या करो? मुझसे लो, क्योंकि मैं जिंदगी बांटने आया हूं। हालेलुया। कहे हालेलुया यीशु के लिए जो जिंदगी बांटता है। कौन बांटता है जिंदगी? यही यीशु, यही चरवाहा जिंदगी बांटता है। उसे पता है मेरी भेड़ों को जिंदगी की जरूरत है, क्योंकि गुनाह कर करके ये मौत और लानत के कब्जे में आ चुकी है और अब मैं इनकी मौत, इनकी लानत अपने ऊपर लेता हूं। और यीशु ने, अच्छे चरवाहे ने अब जो हमारी मौत, हमारी लानत है अपने ऊपर ली और हमें जिंदगी में दाखिल कर दिया। हालेलुया। ये किसका काम है? यीशु अच्छे चरवाहे का काम है। अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों का पल पल में ख्याल रखता है। वो कहता है कि अब मेरी भेड़ों को दूध की जरूरत है, अब सर्दी है। वो आगे चड़ी से उसको हाँकता है और सीधा कहां लेके जाता है? दूध के अंदर। दूध उसको सुलगाता है कि बैठो, तुम दूध के अंदर बैठो ताकि तुम्हारे जिस्म को हरारत पहुंचे। वो छोटी छोटी बातों का क्या करता है? ख्याल करता है अपनी भेड़ों के लिए। और उसके बाद क्या करता है? वो देखता है कि मेरी भेड़ों को अब खुराक की जरूरत है और वो चारा लेके आता है और चारा
آنکھ کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے دسترخوان پر کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، تمہارے دسترخوان پر ہر ایک میوہ جات پھل ہوگا، تمہارے دسترخوان پر ہر ایک یعنی کہ پھل فراوانی کے ساتھ ہوگا، اور تمہارے بچے دسترخوان پر قد و قامت اور خون گوشت میں بڑھیں گے، اور یعنی کہ دیودار کے درختوں کی مانند آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ میں چرواہا تمہارے بچوں کو قد و قامت میں بڑھاتا ہوں، میں چرواہا تمہیں زندگی دیتا ہوں، میں چرواہا تمہیں تندرستی دیتا ہوں، میں چرواہا تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کر دیتا ہوں، میں چرواہا تمہیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا میں خیال رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا چرواہا ہوں اور تم میری کیا ہو؟ تم میری بھیڑوں ہو، اور ہم بھیڑوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ میرے باپ کے مبارک لوگوں کیا کرو، کیا کرو؟ اپنے باپ کے مبارک لوگوں کو وہ آگاہ کر رہا ہے، میرے باپ کے مبارک لوگوں کیا کرو، میرے پاس ہو تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ آرام کن باتوں سے آرام؟ تھکے مادے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اچھے چرواہے کی یہ تمثیل ہے اور اچھے چرواہے کی یہ صفت ہے، کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے آرام دہ ثابت ہوتا ہے، اچھا چرواہا ہے۔ چھوٹی سی مثال میں نبیوں میں سے اچھے چرواہے کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھا چرواہا کون ثابت ہوگا؟ بائک لے تعلیم جائیے گا، اس سے ہمت کیا ہے۔ اچھا چرواہا کون ثابت ہوا؟ داؤد کا حوالہ چھوٹا سا پڑھیے گا، پہلا سموئیل اس کا غالباً 17 باب 34 سے لے کر 37 آیت۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا، تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ کیا چراتا تھا؟ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی بھرا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اس کے منہ سے اسے چھڑا لیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ داؤد کہہ رہا ہے۔ داؤد کی عمر کیا ہے؟ یہاں پہ داؤد کی عمر ہے کم و بیش 14 15 17 سال، چھوٹا سا لڑکا اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چلا رہا ہے۔ اچھا چرواہا پرانے عہد کے مطابق ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں مارتا، شیر ریچھ کو کیا میں کرتا؟ اسے مارتا اور اسے ان کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر چپڑتا بھیڑوں کی خاطر کیا کر رہا ہے؟ وہ لڑ رہا ہے کہ لڑ رہا ہے؟ اس کی بھیڑیں شیر کے منہ میں ہے، برا جو ہے بھیڑوں کا ریچھ کے منہ میں ہے۔ تو ریچھ اور شیر کیا وہ جانور ہے کہ انسان ہے؟ جانور کے پاس عقل ہوتی ہے؟ عقل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان کے پاس عقل ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ اونچ نیچ کو دیکھے گا، لیکن جو جانور ہے اسے کیا لگے، کیا چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی ہو، وہ اسے تو اپنے گوشت کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ گوشت کھو رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے اوپر بھی چپڑ پڑتا تھا، اور میں اسے کیا کرتا؟ جب کوئی بھی شیر یا ریچھ میرے اوپر چپڑتا اور میں بھیڑ کو چھڑاتا اور بھیڑ وہ نہ چھوڑتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا۔ کیا کرتا؟ داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو مارا ہے۔ یہ نامختون فلسطینی میرے آگے ان دونوں میں سے ایک کی مدد ہوگا، یہ کچھ نہیں میرا کر سکتا۔ آج میں اسے ختم کروں گا، کیونکہ شیر اور ریچھ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں نے اپنی بھیڑوں کی خاطر شیر اور ریچھ کے گلے پڑ کر ان سے بھرے چھڑائے، ان کے بچے چھڑائے، اور میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں، لیکن کسی شیر اور ریچھ کی جرأت نہیں کہ میری بھیڑوں میں سے کسی بھی یعنی کہ جانور کو، کسی پرے کو پکڑ لے، کیونکہ میں ان کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ کس نے کہا؟ داؤد نے کہا۔ داؤد کی عمر کم و بیش میں نے کہا ہے ابھی جوان بھی نہیں ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ بھیڑوں کے لیے جذبہ، اس کے اندر بھیڑوں کے لیے وفاداری ہے۔ بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہے، اگر گھر جاتا ہے تو بھیڑیں اس کے پیچھے جاتی ہیں۔
अगर वो बहराता है तो भेड़ें उसके पीछे आ जाती है। उन्हें पता है कि जब भी रीछ हमारे बच्चों के ऊपर हमला करता है तो ये दाऊद हमारे लिए अपनी जान तक देता है। तो वो भेड़ें उसके पीछे 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 रहती हैं और भेड़ें उसका पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? भेड़ों को पता है कि चरवाहा अच्छा है, हमारे ऊपर जो भी नुकसान आता है उनको उठा लेता है। तो क्या इस दाऊद की जिंदगी के ऊपर हम देखें तो आज हमारी जिंदगी के ऊपर शेर और रीछ जानवर यानी कि इस तरह के जो मुसीबत दे नुकसान दे नजरिए हैं, आज हमारे ऊपर क्या मंडला नहीं रहे? हमारी जान लेना चाहते हैं। वो रीछ जो कि हलाक करना चाहता है, वो शेर जो शेरे बपर है, और वो कहता है कलाम मुकद्दस कि इब्लीस शेरे बपर की तरह दौड़ता हुआ तुम्हें हलाक करना चाहता है ताकि वो तुम्हें मिटा डाले और तुम्हारी रूह को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन तुम्हें बचना है तो अच्छे चरवाहे के हवाले हो जाओ, ताकि अच्छा चरवाहा आपके लिए आगे खड़ा हो जाएगा और कहेगा ऐ शेर और रीछ तू मेरी भेड़ों का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तेरे आगे लड़ूंगा और तेरी दाढ़ी को नोच कर तुम्हें नीचे गिराऊंगा, क्योंकि तेरी जरूरत नहीं कि मेरी भेड़ों को, उनके बर्रों को, उनके बच्चों को तू हाथ भी लगा सके। हालेलुया। अजीजों, आज अच्छा चरवाहा इन भेड़ों के लिए अच्छा चरवाहा चाहिए जो इन भेड़ों के बच्चों को जो रात को रीछ और शेर डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखे भेड़ों के पास क्या हमारे पास भेड़े हैं, हम बच्चे हैं। ये रात को बच्चे डरते हैं, कौन डरता है? बहने, रात को बच्चे डरते हैं, कौन डरता है? रीछ दादा हुआ ऊपर इब्लीस के रूप में आज भेड़ों के लिए नुकसानदेह साबित होना चाहता है। इन भेड़ों के पास जो बच्चे हैं इनको वो सोच करना चाहता है, बीमारियों में मुब्तला करना चाहता है और बच्चों को डिस्टर्ब करना चाहता है। और भेड़े जो है, क्योंकि भेड़े बड़ा मांस है, वो लड़ाई नहीं करती, वो बर्दाश्त करती है, वो सह लेती है, हर बात को पी लेती है। लेकिन यीशु के हवाले होती है और जाकर कहती है चरवाहे से, खादम से कि हमारे लिए दुआ करो, प्लीज हमारे साथ ऐसे कर रहा है। तो क्या भेड़े और चरवाहा खादम वो दोनों इब्लीस को गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कोई व्यू होनी चाहिए, मैं आपके व्यू भी सुनना चाहता हूं कि इब्लीस को गाली गलौज चरवाहा और भेड़े करते हैं। नहीं ना करते तो क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? दुआ करते हैं ना, तो बोलिएगा कि दुआ करते हैं। और दुआ का कुंतक जो है वो खुदा के साथ है और कुंतक के बहाली के वसीला से, क्योंकि कुदरत है इस झूठी कुदरत के ऊपर जो गालिब आएगी और इब्लीस के सारे हथकंडों के ऊपर वो गलबा पाएगी और हमारे बच्चे भी महफूज हो जाएंगे और हम भी महफूज हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने घरों में भी अपाहज हैं, अपने बिस्तर पर भी हम बहुत ही कंफ्यूज हैं और रात जाते वक्त हम कंफ्यूज हैं। क्यों है? क्योंकि इब्लीस शेर बदर की रफ्तारता हुआ हमारे ऊपर हमला कर रहा है और हम खामोशी के साथ उसका जुल्म सितम को सह रहे हैं। हमें खामोश नहीं रहना, हमें खामोश नहीं रहना। मेरी बात को याद रखिए, अपने कान खोल लेकर सुन ले और सुस्ती और गली को छोड़ दे और अपनी जिंदगी जो है वो नॉर्मल हाथ में गुजारे और सुस्त नहीं बल्कि चुस्त हो जाए। खुदा कलाम मुकद्दस हमें आगाह करता है कि तुम क्या रहो, तुम चुस्त हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, ताकि तुम इब्लीस का मुकाबला कर सको। ये सभी नहीं है कि देखिए, अगर दाऊद अपनी भेड़ों को बचाने के लिए रीछ और शेर के गले पड़ता है तो देखिए उसकी सरबुलंदी कहां तक पहुंच रही है, क्योंकि भेड़ें उसकी आवाज सुनती है और जहां वो जाता उसके पीछे जाती है। अगर अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की खातर वो इनके कहने के एक सांप की बल में हाथ डाल रहा कि सांप मेरा क्या करेगा, मैं इसको पकड़ कर कुचल दूंगा, तो वो कुचल रहा है।
उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा मौत का। अगर इब्लीस शेर और रीछ की इनके जी के रूप लेकर उसके पेड़ों के ऊपर हमला करता है, तो खुदा की मदद और खुदा की कुव्वत इस चरवाहे के पास है, और वो कहता है हाँ मेरी भेड़ें कमजोर हैं, लेकिन मैं खुदा की कुदरत के वसीला से इस शेर के ऊपर गलबा पाऊंगा, अपनी भेड़ों को बचा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या भेड़ें बचती हैं कि नहीं बचती? कितनी भेड़ें, मैंने कहा कि कंफ्यूज है। आज हम जो भेड़ों की मान्यता है, क्या किसी का कोई भी मैटर है, प्रभु गिरफ्तगी है या बीमारी है या रात को बच्चे डरते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रॉब्लम का कोई मसला हायल हो चुका है, तो आज इस चरवाहे की आवाज है कि लेके आए मुझे वो भेड़ें चाहिए जिनके घर में अमन नहीं है, मुझे वो भेड़ें चाहिए जिनके मुंह खोर आए हुए हैं, वो भेड़ें चाहिए जिनका जख्म नहीं बच रहा, वो मुझे दो, ताकि इब्लीस का सामना कर कर मुझे 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 तक भी गुजारने पड़ते हैं, तो आपके सामने गुजारता चरवाहा कौन गुजारता? कल्ले भाई को पता, बाकी किसी को नहीं पता। केले भाई को पता, बाकी किसको नहीं पता। भाई अगर ये चरवाहा आपकी खातिर इतनी जोर तोप करके इब्लीस का मुकाबला करता है, आपको याद रखना चाहिए कि आवाज क्या है बेलौस और दुखी लोगों के लिए और बदरूगिरदा लोगों के लिए। मुझे कोई चर्च का कोई शौक नहीं है, ना मैं बनाऊंगा। अलानिया यहाँ आपको बताता हूँ, मुझे दुखी लोग चाहिए। अगर मशरक से है, मगरब से है, शमाल से है, जनूब से है, लाहौर से है, कसूर से है, रैबिट से है और खुर्जा से है, पत्तो चुंगा से है, सब इस चरवाहे की आवाज सुनकर इस घर को लोग कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि मुझे चर्चा नहीं, दुखी लोगों का ख्याल है और दुखी लोगों के लिए आवाज बुलंद रहेगी। हालेलुया। आप आए और फिर रात मेरे दरवाजे पे खटखटाएं, क्योंकि यीशु अच्छा चरवाहा है। आगे आप देखिए यीशु ने क्या अख्तियार दिया है, आप देख सकते हैं इसका अख्तियार। क्यों खातम एक चरवाहा होने का दावा करता है, क्या वो नहीं कर सकता? आगे देखिए यूहन्ना की इंजील में से मैं आपको ये बताऊंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 21 बाब और उसके गालबन 15 आए, उसके आगे से 16 तो पढ़ेंगे। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, तो तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? तो यूहन्ना ने क्या कहा? शमौन ने उसने कहा, हाँ खुदाबंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी क्या चाहता? तू मेरी भेड़ों की गल्ला पानी का। किसने इख्तियार दिया? यीशु ने पतरस को क्या दिया? इख्तियार दिया, तू मेरी भेड़ों की गल्ला बांदी कर। 7 शिगिर्दों से खुदा यीशु में खातिब हुआ। जाते वक्त जब वो आसमान पर जाने लगा, तो यीशु ने जब वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, तो उसने खुफिया तौर पर आसमान पर जाने का इरादा नहीं ठाना, बल्कि 500 से भी ज्यादा लोग थे वहां। उन सब के मजमा के अंदर यीशु खड़ा हुआ और कहा कि देख लो, मैं वो यीशु हूं। कौन यीशु? वही यीशु जो मुर्दे जिंदा करता था। मैं वही यीशु जो अंधों को आंखें देता था। मैं वही यीशु हूं जिस नैन ने उस बेवा के बेटे को जिंदा किया। मैं वही यीशु हूं जिस लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा कर दिया। मैं वही यीशु हूं, मैं वही यीशु हूं जो कि अंधों को आंखें देता और जो पैरालाइज होते को ठकट करता था। आज देखे मेरे हाथों और पांवों में इन लोगों ने कील ठोके थे कि नहीं ठोके। शिगिर्दों ने कहा कि खुदा बनाम सुराग देख रही है। उन्होंने कहा, आओ मुझे छू कर देखो, मैं वही यीशु इब्ने मरियम कलमतुल अल्लाह और खुदा का रसूल, खुदा का पैगंबर हूं, मुझे देखो, छुओ। तो शिगिर्दों ने क्या किया? छुआ कि नहीं छुआ? उसको छूकर सबूत, पाए तारी का सबूत पेश किया यीशु ने किया।
और शागिर्दों ने आकर यीशु के साखों के अंदर, हाथों के साखों के अंदर क्या किया? उंगलियां डाली और मुकम्मल तौर पर चेक किया, हम धोखे में न रह जाए कहीं। तो जब देखा हाथों में उंगलियां डालकर, तो कहा देखो मेरा जिस्म वही है। हाँ खुदावंद तेरा जिस्म वही है। कहा कि देख लो मैं धोखे वाला नहीं, बल्कि मैं यीशु कुदरत वाला मौत के ऊपर गलबा पाकर जिंदा हो चुका हूँ। उसने तारीफ चाहिए कसूर के साथ, जिसने आपके बड़े बड़े काम किए हैं। उसे और जब शागिर्दों ने देखा तो पाँव में गिर पड़े, कहा आए खुदावंद हमें माफ कर दे, हमने शक किया। तो उसके बाद वही शागिर्द जिंदा होने के बाद यीशु शागिर्दों के ऊपर 40 रात और दिन ज़ाहिर होते रहे, और शागिर्दों ने 40 रात और 40 दिन यीशु को देखा, अपनी आंखों से देखा और छुआ, अपने हाथों से छुआ और खाना खाया और यीशु के साथ मिलकर ईद किया और यीशु के साथ पानी पिया और मिलकर ड्रिंक किया, क्योंकि यीशु ने अपने सबूत, अपने बदन का सबूत दिया कि देखो मेरा बदन वही है जो तुम इससे पहले देखते थे और अब भी वो है और आगे क़यामत को भी ये होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का इंसाफ करने के लिए मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। कौन आ रहा है? यही यीशु। उसने चेक करो मुझे, जब चेक किया लोगों ने तो पता चला बिल्कुल ये तो वही यीशु है। तो लास्ट में आखिरी में कहा यीशु लिखा कि 60 शागिर्दों के ऊपर ज़ार हुआ और 7 शागिर्द वो दरिया यानी कि उस नदी के अंदर मछलियां पकड़ रहे हैं। तो उनके पास गया, उनको पहचाना और उसी वक्त वो जो यीशु को पहचान ना सके, एक ने पहचाना, कहा कि पतरस ये तो खुदावंद यीशु है। उन्होंने अभी कपड़े नहीं पहने हुए थे, लिखा कि पतरस ने छलांग लगाई पानी में और कूद पड़ा, अपने आप को छिपाया और डर गया। तो जब बाद में जब यीशु के सामने आया तो ऐसे ही यानी कि अपनी आंखें नीचे किए हुए शर्मिंदा था। तो कहा यीशु ने कि पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो पतरस ने कहा हाँ खुदावंद तू तो जानता ही है। उसने कहा मेरे क्या कारण? भेड़ों की गल्लाबानी का। क्या बाकी शागिर्दों को यीशु नहीं कह सकता था कि मेरे भेड़े चरा? आगे लिखा मेरे भेड़े चरा, मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर और मेरे भेड़ों के लिए तू तैयार हो जा। पतरस को हुक्म दिया और पतरस को इख्तियार दिया और पतरस के ऊपर, शागिर्दों के ऊपर अपना रूप फूंका और कहा कि पैंती के उसके दिन भी तुम्हें पाक रूह कुदस का मसा मिलेगा और तुम ये लिबास, ये लिबासा, ये पहनावा पहनकर जब जहां कहीं भी दौड़ की तरह शेर और रीछ का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा। कहे भाग जाएगा? कौन भाग जाएगा? इब्लीस भाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास रूह अल कुद्स के हथियार हैं और इब्लीस तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अच्छे चरवाहे हो, अगर अच्छे चरवाहे हो तो अपनी भेड़ों के लिए जान दोगे, क्योंकि बात रूह अल कुद्स का मसा तुम्हारे साथ है और तुम जिस बीमारी के लिए हाथ बढ़ाओगे वो बीमारी रिमूव होगी और जिस बदरू की के लिए हाथ बढ़ाओगे वो गवाहियों में तब्दील होंगे और जिस बीमारी के लिए और जिस बंदे के लिए भी जो भी उसका मेडल है उसके लिए हाथ बुलंद करोगे वो मोजे में शुमार हो जाएगा। ये प्यार मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। ये इख्तियार किसने दिया? यीशु ने पतरस को दिया, 12 रसूलों को दिया, 12 अपने चेलों को दिया। तो आगे शागिर्दों ने भी क्या किया? मुर्दे जिंदा किए कि ना किए? अंधों को आंखें दी कि ना दी? वही काम जो यीशु ने किया आगे जाकर उसके शागिर्द भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैंने अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे दी है और तुम भी अपनी जान की परवाह ना करना। उसने तो जान की परवाह कह दी है, तो हम वक्त की परवाह करें? हम तो वक्त की परवाह नहीं करते। करते हैं कि नहीं करते? 8 घंटे लगे, मैंने कहा कि 10 लगे, पूरी रात गुजर जाए, क्या ये चरवाहे भेड़ों के लिए वक्त करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि आगे यीशु के पास था और यीशु ने शागिर्दों को दिया और शागिर्दों ने आगे ट्रांसफर कर दिया और वही रूह की लहरें आज पूरी दुनिया के अंदर गर्दिश करती हुई खाद नील के पास पहुंच रही है
है और शफाया नजरिया आज पूरी दुनिया के अंदर पाए तकमील को पहुंच रहा है। हालेलुया। ये इख्तियार कहां से चला? यीशु के पास से चला। यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा क्या हूं? मैं हूं और तुम भी अच्छे चरवाहे बन जाओ। लेकिन यीशु अच्छा चरवाहा जब बना, लास्ट की बातें, तो क्या यीशु के अच्छे चरवाहे बनने में उसको अप्रिशिएट किया गया दुनिया में? किसी ने किया उसको अप्रिशिएट? किसी ने किया? किसी ने किया? वो लोग जो यीशु के जब यीशु गधे के ऊपर सवार हुआ, ऐलान किया गया कि होशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, तो कितनी भीड़ थी? वही लोग जिन्होंने मोज़े हासिल किए थे, जिनके बच्चे जिंदा हुए थे और जिनके कोढ़ चले गए थे, जो पैरालाइज थे वो गेटअप होकर यीशु के साथ चल रहे थे, और वो बहन जिनके अंदर से बदबू निकली थी, वो सब एक लश्कर, एक ग्रोह बना हुआ था, और वो ग्रोह बहुत बड़ी भीड़, लंबी भीड़ थी, और सारी भीड़ जितनों ने यीशु से शफा पाई थी ना, वो यीशु के पीछे और यीशु गधे के ऊपर बैठा हुआ, और सारे होशना के नारे लगाकर यीशु को यरूशलेम में दाखिल कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब यीशु को पकड़ लिया गया बाकी गतसमनी में, तो लोग वही हैं, लेकिन बयानात चेंज हो चुके हैं। क्या उन्होंने यीशु से शफा नहीं ली थी? मोज़े नहीं लिए थे? सब कुछ था, हासिल किया हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने उनके ज़हनों को पकड़ा, उनके ब्रेन चेंज कर दिया, कहा कि तुम लोगों ने यीशु तुम लोगों को शफात दी है, माना, अच्छा चरवाहा बनकर दिखाया, माना, लेकिन अब मैं तुम्हारे ख्याल चेंज करता हूं, कहो कि यही यीशु को क्या कहो? इसे सलीब दो। क्या कहा लोगों ने? वही नारा था पहले कि होशना जो मुबारक है वो तो खुदावंद के नाम से आता है, लेकिन वही लोग आगे को कह रहे हैं इसे सलीब दो। तो सुनाई होगी लोगों की ना हुई? उन लोगों की सुनाई हुई कि नहीं हुई थी? उन लोगों की सुनाई होगी जो लोगों ने कहा यीशु हकीकत पर मबनी, यीशु अफसाना नहीं है, यीशु कहानी नहीं है, क्योंकि वो हकीकत है, मोहब्बत, लाजवालियत का निशान है। और वही लोगों के बयान, बादशाह ने कहा कि मुझे क्या लगे, मैं तो आपके रूबरू क्या करता हूं? हाथ धोता हूं, इस मुकद्दस का खून तुम्हारी गर्दनों पर, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि ये मुकद्दस है, इसमें मैं कोई बेचा गुनाह नहीं पाता, लेकिन तुम लोग कह रहे हो इसे सलीब दो। तुम्हारे कहने के मुताबिक सलीब देता है, और लोगों के कहने के मुताबिक सलीब उसने कर दिया गया। यीशु ने क्या हासिल किया? लोगों को इनके शफा का जरिया बनाकर क्या हासिल किया? मौत का जरिया। आज अच्छा चरवाहा, अच्छा खादम जब भी ऐसे ही यीशु के पैरों पर, यीशु के बेन नक्शे कदम के मुताबिक चलेगा और यीशु के ऐन मुताबिक अपना कदम बढ़ाएगा, तो वही सलूक लेगा जो यीशु के साथ हुआ है। होगा कि नहीं होगा? बेशक अच्छा चरवाहा आपके लिए कहते बर्बाद करे, बेशक अच्छा चरवाहा आपकी मुसीबतें मोल ले, आपकी बदोहों के लिए लड़े, ओवर बीच और शेर है, लेकिन फिर भी अच्छे चरवाहे के लिए दुनिया में एप्रिशिएट नहीं है, क्योंकि इब्लीस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्योंकि अच्छे चरवाहों को वो कामयाब नहीं होने देता। लेकिन यीशु की कुदरत और खुदा की लाजवालियत उस खादम के साथ होगी और उस यीशु के जैसे साथी और हमेशा रहेगी, उससे कभी सवाल नहीं आएगा। बेशक इस जहान का खुदा जिसने इंसान की आंखों को अंधा कर रखा है, उस वक्त अंधा किया, पेड़ों की आंखों को क्या किया? अंधा किया, और प्यार मुख्तलिफ कर दिया, डिफरेंट कर दिए, मुतराफिक कर दिया। तो आज भी करता है कि अच्छे चरवाहे के बयान पर खिलाफत कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन लिखा है कि जो अच्छे चरवाहे के पर खिलाफत करेगा, पाक रूह आकर उसकी चरवाहे की निगहबानी करेगा और उसकी जंग खुद लड़ेगा, उसे कभी भी सवाल नहीं हो सकता। हालेलुया। अच्छा चरवाहा बनने के लिए अजीजों अपनी जान तक कुर्बान करना पड़ता है।
अपना वक्त तो कोई चीज नहीं है, अपने बीवी बच्चे अपना हर चीज वक्फ करना पड़ता है खुदा के कि हाँ मैं खुदा के लिए इनको भी वक्फ करता हूं। तो आगे का लास्ट का जो स्टेप है वो आपकी जिंदगी है, वो भी देनी पड़ती है। तो तब जाकर अच्छा चरवाहा साबित होता है कि हाँ उसका अजर फिर भी जमीन पर नहीं अच्छे चरवाहे को मिलेगा। आसमान पर यरूशलेम में एंट्री, दाखला, आराम दे मकान और वहां की रहाइश और वहां की जो खुदा ने उसके लिए आवाज लगाई है वही उसके लिए साबित हो सकती है, लेकिन दुनिया से कोई ऐसी बात साबित उसके लिए नहीं हो सकती। हमें समय अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदावंद मुझे अच्छे